Alright, Assalamu alaikum warahmatullah. Today we have, मैं इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी अंग्रेज़ी में बात करना इसलिए बेहतर समझ रहा हूँ क्योंकि मेरे साथी मेरे दोस्त भी इसको समझेंगे। यहाँ मेरी मुलाकात एक सीरियन दोस्त के साथ हुई है जो शाम से हैं और शाम के हालात मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं, पर चूँकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। ये हमें शाम में होने वाले हालात वाक़यात वहाँ की रस्म व रिवाज के हवाले से बताएंगे। So guys, I'm telling you about my Syrian friend. His name is Bilal. Assalamu alaikum Bilal, how are you? Just as you said, I'm not showing your face, so it's your audio. And I'm delighted to see you over here. You're from Syria. What is so good in Syria? What do you like most? First, you want to talk in Arabic or English? عليك انتخب. ما في مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله. الحياة بسوريا كانت سابقا جميلة جدا وحلوة، كنا مرتاحين فيها. قبل الحرب طبعا. ارفع صوتك. قبل الحرب طبعا. هذا الشيء خلى وأدى أنه كثير شباب تغادر بلدها. بالفترة الجديدة حتى صار مو بس الشباب، أيضا البنات هن يطلعوا ويغادروا البلد. فهذا حاليا وضع المعيشي بسوريا، وقدر الله ما شاء فعل. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो मैं बिलाल की इस प्रोडक्ट के हवाले से भी आपको बताऊं, चूँकि बिलाल रिस्क हलाल कमाने के लिए यहाँ पे एक परफ्यूम सेल आउट करें। दे आर ब्यूटीफुल राहतन तय्यबातन। नाम मैं बिलाल से लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा जो हमारी सबके लिए इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। Bilal, just a simple question because you can speak English as well. Is it visitable right now? Can we visit? ممكن الزيارة؟ Yes. Yes, I can go to my country each year. I go 1 month vacation. You can go. Too many tourism. Sorry. Yeah, too many tourism now there. It's safe. In Damascus, in Homs, in Hama, Aleppo, each countries. And yeah, it's safe, but it's expensive. Expensive. This all, yes. Okay, Bilal, one more question. I have heard about the famous shrines in Syria as well. You know which one is most famous? Which is the most famous shrine? You know shrine, Mazar? Yeah, there is Ali Zain al-Abidin in Hama. Ali Zain al-Abidin? Yes, in Hama. Who's he? It's near to me. It's near to you? Yeah, it's near to my city. Yani Ali Zain al-Abidin. It's one of the Imam Ali grandsons. Grandson? Yeah, Is his the grave? Son, yes, his grave there. He is son of Al-Hussein. Oh! Yeah, and there is also in my city Khalid ibn al-Walid grave. Eh, Yeah. Sahabi? Yes, Sahabi. This is in the Muslim side. The Christian side, same in my country also. There's a church. They have there the Lady Miriam belt Okay. in the church. Okay. This for the Christian side. Yeah, you find this kind in all of Syria, between Muslim and Christian, And I heard that. especially in Homs. Okay. In Damascus, we have. I heard that the Lady Zainab shrine as well. Sayyida Zainab, yes. Sayyida Zainab. Sayyida Zainab. Radiyallahu anha. Yes, there's a grave for her also in Damascus. All right. Thank you, Bilal. Very informative. Thank you you, once brother. again for the perfumes. I wish you very best of luck, guys. If you come over here, do buy some good items. I'll try and I'll share the feedback as well. Thank you very much. It's your small shop. इस कॉन्वर्जेशन से मुझे दो बातें समझ में आई। एक तो शाम के हालात बहुत संगीन हैं और दूसरी जो चीज़ें आप सुनते हैं वो कंफर्म नहीं होती जब तक आप वहाँ खुद ना चले जाएं। तो अब सीरियन भाई का ये कहना था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का रोज़ा शाम में है, जबकि हमारे पास जो मालूमात हैं जो दोस्तों ने हमें बताया और ख़ुद मदीना मुनव्वरा हमने ज़ियारत की उसमें यही समझ में आया कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का रोज़ा या आपकी कब्र मुबारक ख़ुद मदीना में जन्नतुल बकी में मौजूद है। तो एक इंकशाफ था जिसको हम वहाँ जाके ही देख सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारे भाई ने बहुत से लोग जानते हैं करेंसी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मसलन अगर मैं पाकिस्तानी या इंडियन में ही बात करूँ तो एक रुपया जो पाकिस्तानी है वो 9-10 सीरियन लीरा के बराबर बनता है और वो भाई ने जो डॉलर के साथ एक्सचेंज बताया वो तो तबाहकुन। हमने एक और भी बात सुनी है, वो ये है कि सीरिया में जो रिलीजन या जो स्कूल ऑफ थॉट ज़्यादा राइज है वो हैरान कुन तौर पे नुसैरी रिलीजन भी है, यानी एक बड़ी तादाद में एग्जिस्ट करता है। इसमें कितनी सदाकत है ये तो वहीं जाके पता लग सकता है या वहाँ से कोई इंसान
जो डायरेक्ट हमारे प्रोग्राम में आए, मगर हमने ये फ़ैसला किया है कि इंशाल्लाह इरादा किया है कि हम एक विज़िट सीरिया का करेंगे, जहाँ पे एक बात ये कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का रोज़ा वाक़ईन वहाँ पर है, इसको डिस्कवर करेंगे। दूसरा, जिसको उसने कहा जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा, उसको विज़िट करेंगे क्योंकि उसने बहुत अच्छा तारुफ़ करवाया। उसने बताया कि इट्स वेरी वेल नोन, मगर जब हमने उससे सवाल पूछा तो उसको उन टॉप 3 में नहीं आ रहा था वो। बट जब उसने तारुफ़ करवाया तो ऐसा लगा कि वो फिर सबसे ज़्यादा हैवी प्रोमिनेंट चीज़ है वहाँ पर। और तीसरी चीज़ जो हमने वहाँ जाके देखनी है, डिस्कवर करनी है, सीरियन लोग, शामी लोग। शाम इतना कदीम मुल्क है, इतनी बल्कि यूँ समझ लें कि एग्जिस्टेंस में जो नंबर टॉप 3 होंगे उनके अंदर शाम का ज़िक्र आता है। सबसे ज़्यादा तादाद में अंबिया कराम शाम, यरूशलेम, ये जो सारा रीजन है इसमें आप भेजे गए। तो मैंने आज ये दिमाग बनाया है, और अगर हमारे दोस्त हमारे साथ ताउन करेंगे इंशाल्लाह, जैसे कि हम हर कंट्री में जाते हैं, हम सीरिया भी जाएंगे।